Hello everyone, how are you? Well, this is Anjali Kumar and again I am before you with my new video, and the title of the video, as you can see on the top of the board, is adverb, and this is adverb part 5. Well, in today's video we are going to have a very clear discussion about the differences between, yes, fairly and rather. Fairly and rather. What are the basic differences between fairly and rather? इन दोनों का यूज किस कंडीशन में होता है? We will have a clear look in this one video. And at the end of the video, we will discuss about what? Yes, you are guessing right. It is common errors regarding the uses of fairly and rather. Okay? So waiting for what? Let's start this class. See here. You are seeing fairly versus rather. Clearly, हम लोग इस वीडियो में fairly versus rather की uses सीखेंगे. So शुरू करते हैं. Yes, till the end you have to see my video. Why? Because at the end we will talk about some common words. See, fairly, यहाँ पे आप देखो P is here and rather के बाद in है. इसका meaning ये है, whenever you have to use fairly in your sentence, that means after fairly positive sense आता है. fairly के बाद आने वाले whatever adjectives or adverb हैं, that will show your positive sense. And just on the other hand, you will find that after rather, negative sense show होता है. After rather के बाद जो भी adjectives या adverbs आएंगे, वो negative sense को show करने वाले हैं. कुछ एग्जाम्पल आप देखो. See, fairly smart. Okay, fairly इसके बाद आने वाले तो एडजेक्टिव है स्मार्ट. दिस इज पॉजिटिव सेंस. वी यूज स्मार्ट इन ए पॉजिटिव सेंस. नेक्स्ट वन, rather dull. डल एक नेगेटिव सेंस को शो करता है. सो rather के बाद डल हमने यूज. ठीक है, तो आप लोगों को इतना अपने जहन में रखना है कि फेयरली के बाद जब भी एडजेक्टिव या एडवर्ब्स आ रहे हैं, दिस विल बी विथ पॉजिटिव इंपैक्ट और पॉजिटिव सेंस. व्हाइल ऑन द अदर हैंड, व्हेन एनी एडजेक्टिव और एडवर्ब इज बीइंग फॉलोड बाय रादर, इट विल हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट. अब चलो ये हमारा फिनिश हो गया ये सेगमेंट. अब देखो, I'm going to read it. अब कुछ लोग आदमी बहुत दूसरे किस्म के होते, बोले कि मेरे को नहीं भाई, मेरे को रेदर के बाद ही गुड सेंस वाला करना है. तो क्या उसकी सेंटेंस यूजलेस हो जाएगी? नहीं. देखो क्या होता है. सी, रेदर प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव और एडवर्ब, दैट मींस रेदर के बाद अगर आप पॉजिटिव सेंस वाले एडजेक्टिव या एडवर्ब यूज करते हो तो उसकी मीनिंग स्लाइटली चेंज हो जाएगी. ओके, rather एंड fairly मींस एग्जैक्टली होता है. और आप जानते हो एग्जैक्टली मतलब बैलेंस्ड वे, न कम न ज्यादा. ओके, rather and fairly means न कम न ज्यादा exactly. But अगर आप rather के बाद गुड सेंस वाले पॉजिटिव सेंस वाले एडजेक्टिव या एडवर्ब यूज करते हो, इसकी मीनिंग यहां पे देखो, मैंने व्हाट का साइन लगाया हुआ है. rather प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब इज इक्वल टू वेरी प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब. इसकी मीनिंग ये होती है.
How it is coming in your sentence? Just see it. See here. He is rather smart. Do you know what is the meaning? ये सेंटेंस गलत नहीं हुआ, इसकी मीनिंग चेंज हो गई. What is meaning? This means he is very smart. Okay? In the same way, she is rather beautiful. इसकी मीनिंग हो जाएगी she is very beautiful. But you have to keep in your mind that generally fairly is followed by positive sense and rather is followed by negative sense. Okay? But if somebody is writing he is rather smart or somebody is speaking he is rather smart, that means to say that he is very smart. And the same way, if somebody is saying she is rather beautiful, that means to say he is meant to say that she is very beautiful. Okay? Now, हम लोगों ने इस सेगमेंट को भी फिनिश किया. अब देखो आप लास्ट वाला सेगमेंट में क्या है. अब एक ऐसा आदमी मुझसे बोला कि सर मेरे को जो मन में यूज करना है वो करूं. फेयरली के बाद पॉजिटिव करूं, नेगेटिव करूं, मेरी मर्जी. उसकी मर्जी है लेकिन मीनिंग चेंज हो जाती है. सी हाउ द मीनिंग विल गेट चेंज. सी अब देखो आप हॉट का अपोजिट कोल्ड होता है. ओके? फास्ट का अपोजिट स्लो होगा. High the opposite low. So basically these adjectives are natural in itself. ये adjectives अपने आप में नेचुरल होते हैं. इसमें कोई नेगेटिव सेंस नहीं, इसमें कोई फेयरली भी यूज कर सकता है, rather भी यूज कर सकता है. अब इसकी मीनिंग क्या होती है? If somebody is saying, see here, अब देखो फेयरली पॉजिटिव, देखो आप यहाँ पे स्माइली का साइन है. अगर किसी ने बोल दिया द टी इज फेयरली हॉट, इसका मतलब यह है कि अगर आप उसको चाय सर्व करोगे तुरंत एकदम झपट्टा मार के आपके कप को वो पकड़ लेता है. बिकॉज ही लाइक्स द हॉट टी. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा हॉट टी यूज नहीं करते. दैट्स व्हाई दे विल वेट. सो द टी इज फेयरली हॉट, दैट मींस कि द टी इज फेयरली हॉट, दैट मींस द पर्सन इज लाइकिंग द हॉट टी. अब somebody is saying the tea is rather hot, मीनिंग वो बहुत गर्म चाय नहीं पी सकता, तुरंत का तुरंत नहीं पिएगा. ही विल टॉक टू यू. आपने एज अ गेस्ट किसी को चाय सर्व किया, अगर वो उतनी गर्म चाय नहीं पीता है, गर्म चाय लाइक नहीं करता, वो ठंडी चाय थोड़ी सी गर्म चाय लाइक करता है, तो इफ यू विल से प्लीज हैव द टी, वो बोलेगा नो नो द टी इज रादर हॉट. मतलब वो डिसअप्रूव कर रहा है. मीनिंग अगर इन नेचुरल एडजेक्टिव्स के बाद यानी फेयरली के बाद अगर ये नेचुरल एडजेक्टिव्स आप यूज कर रहे हो, दैट मींस द पर्सन इज अप्रूविंग इट. और इन द सेम वे इफ आप rather के बाद इन नेचुरल एडजेक्टिव का यूज कर रहे हो, दैट मींस द पर्सन इज डिसअप्रूविंग इट. ओके? आई एम श्योर दैट यू मस्ट बी एंजॉयिंग दिस क्लास. नाउ our last segment, and the segment is of common errors. What a thing I have promised you that I will tell you in the end. See how, what, where, when. No, not like that. See here. Fairly
and rather. fairly के बाद आपको to का यूज नहीं करना है. This is a wrong writing. But rather के बाद आप to यूज कर सकते हो. Rather too bad. This is your correct. ये कॉमन एरर से है. See, आप fairly के बाद to का यूज नहीं करना. This is your common error. But rather के बाद आप to का यूज कर सकते हो. My children, I am very much sure that you must have enjoyed this video very much. And please, if you are not understanding in one time, please watch it again and again and again. And don't forget to share my videos among the lovers of English grammar. Till then, take care of yourself and wait for my next video. Bye.